Electronic voltmeter for the AC. DC में जैसे आपने देख लिया, एक तो ये चॉपर स्टेबलाइज्ड है. Its working is little complicated, so uh, the first one, direct couple electronic meter, is much simple in the working, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान है, as it's there is no choppers involved, और इसके अंदर किसी किस्म की पल्सेटिंग की जरूरत नहीं. ऑलरेडी जो आपके पास impedance है, that is quite large. So for AC measurement, what we need to do is we have to go for the half wave or full wave rectification. We'll use the benefit of op-amp. इसमें जो impedance है, that is quite large. So voltage on the input side, that is across R1, और वो वोल्टेज जो है वो क्योंकि हमारे पास यूनिटी गेन है, तो देयरफॉर जो आउटपुट है, that is output voltage is equal to the input voltage, और जो हमारा मीटर करंट होगा, that would be basically depending upon the Vn and limited by the resistance R2. अब जो because we are going to apply sinusoidal voltage, तो जो output voltage होगा, that is also going to be sinusoidal, and the average voltage we can find out, or average current we can find out by Vm over pi, और जैसे हमने अभी पावर सर्किट के हिसाब से भी देखा था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में we have Vm by pi. Similarly, Vm over R indicates the meter current, and therefore Im divided by pi, that is comes out to be 0.318. और अगर मैं Im को कन्वर्ट कर दूं RMS वैल्यू में, then I can write it down as under root 2 IRMS divided by pi. So that comes out to be sorry, 0.45 of the RMS current. We can find out as the average current. इसकी कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं है. Similarly, second option है हमारे पास of full wave rectification. So again, in this case, we can get the voltage at the output equal to the input voltage. So therefore, V out is going to be Vn divided by the Im going to be Vn divided by R2. In a similar fashion,
और यहाँ पे जब हम एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे, so in case of average current we have Vm, I think 2 Vm by pi and R. So this Vm by R is the Im. There is 2 by pi into Im, and that is 0.63. And if we want this convert into RMS value, then we are going to have this 2 into under root 2 divided by pi and RMS value. So this is how we can relate the RMS and average current. So in case of full wave rectifier, the average current is going to be the 90% of the RMS current, and therefore we are going to find the value of whatever voltage is coming on the input side. Okay. So measurement के लिए जो हमारे पास probes हैं, they are quite special in this scenario. और ये इसकी probe का circuit है. So this probe has a very high impedance, 4.7 mega ohms. Okay, so then we move on to ohm meter. Again using the permanent magnet moving coil meter. So in this case we can use the permanent magnet moving coil meter to measure the unknown resistance. और unknown resistance में इसी तरह से पहले हम और एडजस्टेबल को इस तरह से फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो है वो एडजस्ट करेंगे. So let's read it out. So first we short circuit RX, जो unknown resistance है हम इसको पहले short circuit कर देंगे, and then we adjust the R adjustable so that we have full scale deflection. And then we will be finding the current whatever is passing through this meter. So current को use करते हुए we can find out the value of Rx.
यहाँ से फिर हम आर एक्स की वैल्यू जो है ये फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन दिस केस, बिकॉज अगर हमें आर एक्स अननोन आर एक्स नोन हो तो फिर तो हम आराम स्टार्ट करके हम क्या स्टार्ट करेंगे पहले? से शॉर्ट करके हम आर एडजस्टेबल को भी जो है वो एडजस्ट करेंगे सो दैट वी हैव मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और उसके बाद यस सर। फिर जब हम ये शॉर्ट सर्किट मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है वो ड्रॉप करेगा और ये वापस एक सर्टेन जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप जो है नए करंट से फिर अप्रॉक्सीमेट करेंगे कि आर एक्स की वैल्यू कितनी है जिसके लिए ये करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप का जो स्केल है वो नॉन लीनियर होगा। वाई? बिकॉज आपको आर एक्स फाइंड करना जो है वो इस सम में से दैट इज नॉट इजी, क्योंकि जो वी बैटरी है ये आई एम और प्लस ये सारी जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको मिला के ये करंट जो है वो इक्वल होगा बैटरी वोल्टेज के। ठीक है, तो इसमें से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल, और इसमें से हम चेक करते हैं कि ओम मीटर की अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगी। सो वी हैव पीएमएमसी 50 माइक्रोएम्पियर करंट इसमें से मैक्सिमम जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, और जो कॉइल की रेजिस्टेंस है दैट इज 1.5 किलो ओम्स। Battery voltage is 1.5 volts, so we have to find the value of R adjustable ताकि हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड कर सकें। एंड देन वी हैव टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस जो कि मिड स्केल रीडिंग तक आ सके। हाफ स्केल तक आ जाएगी तो फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। Okay. So initially Rx is 0 and full scale deflection is 50 microamperes. So the total resistance is going to be 30 kilo ohm, और 30 किलो ओम में से फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी जो है रेजिस्टेंस आएगी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। देन वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर हम हाफ स्केल के लिए आर एक्स को फाइंड करें तो फिर IM is going to be 25 microamperes, and for that the resistance with respect to battery voltage and measured current, which is now half of the full scale, gives us the total resistance minus the resistance of adjustable and the coil. तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है दैट शुड बी 30 किलो ओम। ठीक है जी, तो इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि अगर हमें आर एक्स से आर एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका अगर हमें
ये नहीं पता कि वो करंट कितना ड्रॉप करेगी, तो फिर उसको फाइंड आउट करना मेरा थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। हम फाइंड आउट करेंगे करंट, और फिर करंट से टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगी वो फाइंड आउट करेंगे, और वहां से फिर हम आर एक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सो अब चूंकि बैटरी वोल्टेज जो है वो ओवर द टाइम डिके कर जाती है बैटरी वोल्टेज, तो इसलिए उस इफेक्ट को किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड फॉर दैट वी कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ सर्किट। और इसमें ये होगा कि आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है और जो आर एडजस्टेबल है, दे आर बिफोर द मीटर करंट। ठीक है, वो टोटल करंट बनाएगा जो कि बैटरी करंट होगा, एंड देन वी हैव अ शंट रेजिस्टेंस in parallel with the moving coil meter and the coil resistance. इसके पैरेलल में हम एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, so that whatever is the battery voltage, accordingly battery current will change। ठीक है, और जो भी बैटरी करंट में जो चेंज आएगा, अगर बैटरी वोल्टेज चेंज हो रहा है या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वो सिर्फ बैटरी करंट के ऊपर अफेक्ट करेंगे, एंड देन दिस शंट करंट और जो मीटर करंट होगा, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सो मीटर करंट जितना हमने एडजस्ट किया है वो उतना ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैटरी वोल्टेज। और यहाँ पे फिर हम टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, विदाउट आर एक्स total resistance is equal to R adjustable plus the parallel combination of R shunt and R meter। So R adjustable जैसे हमने previously example में भी देखा है, that is quite large than the parallel combination, so that the total resistance is equal to some R1, और अगर हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको आर एडजस्टेबल के करीब कर दें, तो फिर जो जब आर एक्स लगेगा तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, तो फिर ये हाफ स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। सर इसके अंदर R1 क्या है सर? R1 एक आर्बिट्रेरी रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली इक्वल टू दिस टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, क्योंकि आर एडजस्टेबल जो है ना वो हम वेरी कर सकते हैं, तो इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है अगर ये इसके बराबर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये विदाउट आर एक्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, और विद आर एक्स हाफ स्केल डिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि अगर आर एक्स और आर एडजस्टेबल जो है वो क्लोज होंगे या एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो फिर आप कह लें कि जो ये रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आर एडजस्टेबल इज डोमिनेंट। तो अगर मैं इसको कहूँ R1 एंड दे आर क्लोज टू RX, तो फिर क्या होगा कि R1 जब होगा, जब हम सिर्फ R1 अप्लाई करेंगे और यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देंगे,
तो ये यहाँ पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन होगा, और जब हम आर एक्स को इंक्लूड कर देंगे तो ये दोनों करीब करीब हैं, तो दैट इज लाइक 2R1। ठीक है, तो आपका जो स्केल है वो हाफ पे आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम जो आर एक्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में फिर जो टोटल करंट है दैट इज लाइक दिस, V battery divided by Rx plus Rx parallel with Rm plus the R adjustable. अब इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दैट इज इफ वेरी स्मॉल देन R adjustable, तो फिर हम कह सकते हैं कि वी कैन इग्नोर दिस पैरेलल इक्विवेलेंट बिकॉज R adjustable is quite large, Rx is very large, तो फिर ये स्मॉल रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इफ वी कैन इग्नोर दैट, तो फिर आपके पास जो है ये जो बैटरी करंट है दैट इज approximated to R adjustable V battery over Rx plus R adjustable. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इवन दो के जो बैटरी वोल्टेज है वो अगर वेरी भी करता है तो उससे बैटरी करंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हम जो मीटर करंट दैट वुड बी ऑलमोस्ट फिक्स्ड उस तरह से। So let's look into this. We have a meter with 50 microampere current. 50 ohm is the resistance, which is used in the ohm meter. Or 1.5 volt battery, the adjustable resistance is 15 kilo ohms. So half scale is obviously equal to the R adjustable, so 15 kilo ohms. So let's say half scale deflection from 50 microampere is going to be 25 microamperes. So therefore, resistance is going to be twice of the R adjustable, और हम फिर बैटरी करंट फाइंड कर सकते हैं which is obviously 50 माइक्रो। और यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर की रेजिस्टेंस है और जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगानी दैट इज ओनली इक्वल टू द मीटर रेजिस्टेंस 50 ohms, ताकि ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत छोटी बने और आर एडजस्टेबल जो है वो इजीली हम अननोन रेजिस्टेंस के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो शंट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए फिर हम इसको पैरेलल में लगाएंगे, बट फॉर दिस वी विल बी डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चंस? No, sir. No.